Hello students, uh, today we will discuss the modes of a rectangular cavity and the open planar resonator, that is modes of rectangular cavity as well as of the open planar resonator. So yesterday we have discussed about the longitudinal modes, and the modes that are along the axis of the cavity are called the longitudinal modes. Okay, so the what are the transverse modes? The transverse modes are the modes which are perpendicular to the cavity axis. That is, if we have taken the axis of the cavity is z axis, then the perpendicular direction of z axis, or the axis of the axis perpendicular to the z direction, are x and y. So the modes along the x direction and y direction will be the transverse modes, and the modes along the z direction will be the longitudinal modes. Okay, so here we will derive the modes of oscillation for rectangular cavity, that is for closed cavity and for open cavity. Okay, so स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे. मैक्सवेल इक्वेशन आपने ईएमटी में भी डिराइव किया है. मैक्सवेल इक्वेशन से जब हम ई फील्ड एंड बी फील्ड जो है एक वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो दैट इक्वेशंस कम as this del 2 e minus n naught square upon c square del 2 e upon del t square equals to 0. Okay, and now if we are considering a rectangular cavity of length 2a, width 2b, and uh, this sorry 2b 2d and 2a dimensions. ठीक है, एक रेक्टेंगुलर कैविटी को हमने कंसिडर कर लिया है जिसकी डायमेंशंस है जेड एक्सिस में d, वाई एक्सिस में 2b एंड एक्स एक्सिस में है 2a. ओके, सो इसके लिए हम ये लिख रहे हैं, मैक्सवेल इक्वेशन का यूज़ करके हमने ई फील्ड या बी फील्ड, जब हम ईएमटी में भी पढ़ा है वहाँ से हमने लिखते हैं कि इस इक्वेशन को, इस वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. ओके, सो अगर हम where n naught square is equal to n naught is the refractive index of the medium, c is the velocity or speed of the light, okay, e is the electric field. So if we consider the Cartesian component, say ex, we are considering here the Cartesian component ex of electric vector, and it will also satisfy the wave equation this. So if we open this in three dimensions, then we will get del 2 ex upon del x square, del 2 ex upon del y square, del 2 ex upon del z square. हमने केवल एक ही कंपोनेंट लिया है ex, तो ex जो है वो इसको कैसे सेटिस्फाई करेगा, इन दिस वे. क्योंकि आपको पता है डेल ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है, डेल ऑपरेटर जो है वो किस तरीके से ऑपरेट करता है, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, बट यहाँ पर डेल स्क्वायर है, सो उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा डेल डॉट डेल, तो दैट विल गिव अस डेल 2 स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल 2 स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल 2 स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर ऑफ ई एक्स. सो इसको ओपन करके ये आ जाएगा, एंड राइट हैंड साइड में लेंगे तो एन नॉट स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू डेल 2 ई एक्स स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर, बिकॉज वी आर considering here only the component ex. So using method of separation of variables, I am not elaborating it because you already have learned it in quantum mechanics, and also in EMT you have also derived it. Okay, so using method of separation of variables, but मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको हिंट दे देती हूँ कि थोड़ा सा रफली सा बता देती हूँ. सो ई एक्स इज इक्वल टू एक्स कैपिटल वाई इंटू कैपिटल जेड इंटू कैपिटल टी. ओके, एंड 1/x, ये कुछ याद आ रहा होगा, ऐसे हम इस तरीके से मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं. सो 1/x del 2x upon del x square is equal to minus kx square, 1/y del 2y upon del y square is equal to minus ky square, and 1/z del 2z upon del z square is equal to
minus kz square. So this is equation 5, and obviously n naught square upon c square t into del 2 t upon del t square is equal to minus k square, where k square is equal to kx square plus ky square plus kz square. As you know that k vector k can be written as kx x cap plus ky y cap plus kz z cap. Okay, so from there k square can be written as k dot k uh, vector k dot vector k. So this will give you kx square plus ky square plus kz square. So if n cap is the unit vector along the normal to the wall, यानी कि जो कैविटी की वॉल है, ये जितनी भी ये वॉल्स हैं, ठीक है, तो अगर ये वॉल एक पीछे भी वॉल है, तो इनकी जो नॉर्मल है अगर वो एन कैप है, इस डायरेक्शन में भी नॉर्मल कैप, एंड ये इस वाले डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, अगर किसी भी वॉल पे हम जो है नॉर्मल जो यूनिट वेक्टर है वो दैट इज इफ एन कैप, देन नॉर्मल के अलोंग जो है ये एन कैप यूनिट वेक्टर है. ओके, देन वी हैव ई क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू 0. सो ऑन द वॉल्स ऑफ द कैविटी, सो जो कैविटी पर ई क्रॉस एन कैप जो होगा वो 0 होगा. ओके, ठीक, बिकॉज दीज जो जिस डायरेक्शन में 0 किस डायरेक्शन में होगा, अगर दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम होती हैं. ओके, सो एक्स ई एक्स जो है वो क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है. ई एक्स इज अ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ई on the planes y is equal to 0 to b and z is equal to 0 and z is equal to d. so यानी कि ये दिस प्लेन y and z प्लेन ये, ठीक है, तो इस प्लेन पे अगर ex जो है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, सो इट हैज़ टू वैनिश ऑन दिस प्लेन्स. सो इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा. ओके, सो फॉर दिस इक्वेशन 4 and 5, this equation and this equation is 3, this equation is 4 and this equation is 5. So this, for this condition that ex is a tangential component on the planes y is equal to 0 and y is equal to b and z is equal to 0 and z is equal to d, so it has to vanish on, that is ex must be 0. So using equation 4 and equation 5, ky is equal to n pi अपॉन 2b, इसको हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसका भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. वहीं से हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं, के वाई एंड के जेड की. ये सब आपने क्वांटम मैकेनिक्स में अच्छे से किया होगा. ओके, सो सिमिलरली एक्स एंड जेड डिपेंडेंसेस ऑफ ई वाई would be sin kx and sin kz z with kx is equal to m pi by 2a and kx is equal to q pi by d. ओके, सो एक तो एक्स और जेड की डिपेंडेंसीज और एक जो है हमने किसकी वाई एंड जेड की डिपेंडेंसीज निकाल ली हैं. ठीक है, सो दीज आर दिस. इसी तरीके से एक्स डिपेंडेंस ऑफ ई एक्स विल बी ऑफ द फॉर्म cos के एक्स एक्स विद kx, because on plane x equals to 0 and x equals to 2a, divergence of E is equal to 0. So this leads to del Ex upon x, del x is equal to 0. So Ey and Ez can be obtained as Ex is equal to E0x, Ex is equal to E0x cos kx x sin ky y sin kz z. इसी तरीके से ई वाई ई जीरो वाई साइन के एक्स एक्स कॉस के वाई साइन के जेड जेड एंड ई जेड इज इक्वल टू के ई जीरो जेड साइन के एक्स एक्स कॉस के वाई साइन के जेड जेड. सो दीज set of equation is equation 8th. Okay, so for a given set of values of m, n and q, only two of the components of E0
कैन बी चूजन इंडिपेंडेंटली। सो एम एन और क्यू की कई वैल्यूज हो सकती हैं, तो एक सेट ऑफ वैल्यू के लिए केवल दो कंपोनेंट्स जो होंगे E0 के, उनको हम इंडिपेंडेंटली चूज कर सकते हैं। So, thus a given mode can have two independent states of polarization. So, a given set of M and Q के लिए there are two independent states of polarization. Okay, so if M and N and Q इनमें से कोई भी अगर या तो M0 हो और या N0 हो और Q0 हो, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन हो, या अगर M0 हो या Q0 हो या N0 हो। ओके, सो देयर इज ओनली पॉसिबल पोलराइजेशन, देयर इज ओनली वन पॉसिबल पोलराइजेशन स्टेट। तो तब हमें एक ही पॉसिबल पोलराइजेशन स्टेट मिलेगी एसोसिएटेड विद द मोड। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अगर M इज इक्वल टू 0 है और N और Q इज नॉट इक्वल टू 0, देन Ex is equal to E0x sin KYY sin KZZ and EY is equal to 0, EZ is equal to 0. So केवल एक यानी कि M is equal to 0 के लिए जो हमें पॉसिबल पोलराइजेशन स्टेट मिला वो हमें कौन सा M मोड का मिला है। ठीक है, तो पॉसिबल पोलराइजेशन स्टेट जो है हमें केवल कौन सा मिला है, ये Ex is equal to E0x sin KYY sin KZZ. So this is associated with this mode M equals to 0 mode. Okay, so thus we obtain omega square is equal to c square k square upon n naught square. ये हमें पता है फॉर्मूला, ओमेगा को हम लिख सकते हैं सी के अपॉन एन। सो वहीं से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया सी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एन नॉट स्क्वायर। तो क्योंकि हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का ले रहे हैं एन नॉट, सो यहाँ पर हम एन नॉट यूज़ कर रहे हैं। तो सी स्क्वायर अपॉन एन नॉट स्क्वायर इंटू के स्क्वायर को अगेन हम लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, एज के वेक्टर इज के एक्स एक्स कैप, के वाई वाई कैप एंड के जेड जेड कैप। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इस के एक्स की, के वाई की और के जेड की वैल्यूज हम लिख लेते हैं इक्वेशन 6 एंड 7 से। इक्वेशन 6 एंड 7 से हम के एक्स के वाई और एंड के जेड की वैल्यूज जो है पुट कर लेते हैं इस ओमेगा की वैल्यू में। ओके, सो ओमेगा स्क्वायर गिव्स सी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एन नॉट एम स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये सब के एक्स के वाई और के जेड की वैल्यू हमने वहाँ से पुट कर ली है। ओके, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रिक्वेंसी ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ द क्लोज्ड कैविटी। तो क्लोज्ड कैविटी में जो जितने भी हमें कई मोड्स जो मिल रहे हैं उसके लिए जो ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी है वो होगी ओमेगा इज इक्वल टू सी पाई बाई एन नॉट इंटू एम स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की पावर 1/2. So this equation 9 gives the allowed frequencies of oscillation of the field in the cavity. Okay, so field configurations यानी कि equation 8 है जो that gives the standing wave pattern in the cavity and this equation also, this equation 9. Okay, and these are similar to the acoustic modes of the vibration of an acoustic cavity. So this equation 9 gives the mode of oscillation of the cavity. So ये अगर आपके पास पूछा जाएगा कि modes of oscillation of the cavity प्रूफ करना है तो आपको ये इक्वेशन प्रूफ करनी है। ओके, तो दिस रिप्रेजेंट्स द मोड्स ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द क्लोज्ड कैविटी, हम कह सकते हैं क्लोज्ड कैविटी। ओके, so these modes are similar to the acoustic modes of the vibration of an acoustic cavity. So acoustic जब हम साउंड में पढ़ते हैं तो अकाउस्टिक कैविटी जैसे कि गिटार हो गया, वीणा हो गया, दीज आर दी अकाउस्टिक कैविटी। तो उनके लिए भी जो अकाउस्टिक मोड ऑफ वाइब्रेशन जो आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं। ठीक है, so using equation 9 the number of modes per unit volume in a frequency interval
nu to nu plus d nu will be this p nu d nu equals to 8 pi n नॉट क्यूब अपॉन c क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू। ये हम जो है जब आप जैसे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जब आप फाइंड आउट करते हो, ठीक है, तो वैसे ही इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हो ये कैसे करना है, तो इस इक्वेशन के लिए मैं आपको बता दूंगी कहाँ से आया है, ठीक है। तो वैसे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जैसे हम करते हैं वहाँ पर मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम जैसे हम निकालते हैं वैसे ही यहाँ पर भी निकाला है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम इन पहले नंबर ऑफ मोड्स निकाल लेंगे फिर यूनिट वॉल्यूम से जो है डिवाइड कर देंगे। ओके, सो दिस इज द नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम। So the number of modes per unit volume in the frequency interval nu and nu plus d nu, this will be p nu d nu equals to 8 pi n naught cube nu square d nu upon c cube, where n naught is the refractive index of the medium filling the cavity। तो cavity में जो भी material है या medium है उसका जो refractive index है that is n naught। okay, so for a typical atomic system if d nu typical atomic system d nu is 3 into 10 to the power 9 hertz at nu equals to 3 into 10 to the power 14 hertz and assuming n naught equals to 1, so p nu d nu will be 8 pi n naught cube nu square d nu upon c cube and ये वैल्यूज यहाँ पुट कर लेंगे हम, तो हमें मिलेगा 8 इंटू पाई इंटू एन नॉट की जगह पे 1 पुट कर लीजिए और न्यू स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 10 पावर 14 का स्क्वायर इंटू डी न्यू 3 इंटू 10 पावर 9 अपॉन सी क्यूब 3 इंटू 10 पावर 8 पावर 3। So it will give the value 2 into 10 to the power 8 per centimeter cube, per centimeter cube. Okay, so this is the number of modes per unit volume. Okay, so these number of modes are very very high. So for this for the volume of the order of 10 to the power centimeter cube, the number of possible modes within the line width are 2 into 10 to the power 9 or 2 into 10 to the power 8 per centimeter cube or in the volume 2 into 10 to the power 8 centimeter cube. So cavities having volume of 10 to the power centimeter 10 into centimeter cube 10 centimeter cube, sorry, for these cavities having volume of order this, number of possible modes is this. Okay, so which is very very large. So to obtain very small number of modes, cavity has to be made very small. So अगर हमें कम संख्या में चाहिए मोड्स, नंबर ऑफ मोड्स अगर हमें कम करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैविटी का जो वॉल्यूम है या कैविटी जो है वो बहुत स्मॉल होनी चाहिए। सो इफ पॉसिबल मोड्स आर लार्ज इन नंबर then all the oscillating modes can draw energy from the atomic system and resulting emission would not be monochromatic। अगर जो पॉसिबल मोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाए, जैसे कि हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है 2 into 10 पावर 8, तो पॉसिबल मोड्स अगर इतने ज़्यादा हैं तो जितने भी ऑसिलेटिंग मोड्स होंगे दे कैन ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम द एटॉमिक सिस्टम एंड देन रिजल्टिंग एमिशन वुड बी monochromatic, would not be monochromatic, sorry। so if it would not be monochromatic, so लेज़र सिस्टम कैसे लेज़र सिस्टम जो कि जिसकी एक प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मोनोक्रोमेटिसिटी, वो कैसे ऑब्टेन करेंगे हम। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि हमें कैविटी का जो वॉल्यूम है या कैविटी जो है वो छोटे साइज की लेनी है। सो इन ऑर्डर टू हैव द वेरी फ्यू ऑसिलेटिंग मोड्स, दैट इज हमको अगर कम संख्या में मोड्स चाहिए within the cavity, then dimensions of the cavity are chosen to be of the order of the
वेवलेंथ, तो हमें इस तरीके की कैविटी चूज करनी है जिसका कि साइज जो है वो वेवलेंथ की साइज के नियर हो, वेवलेंथ की साइज के ऑर्डर का हो। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग दी ओपन कैविटीज। अगर इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग दी ओपन कैविटीज। किस प्रॉब्लम को, ये जो नंबर ऑफ मोड्स जो हमें बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा संख्या में मिल रहे थे, इनको कम करने का सॉल्यूशन क्या है कि कैविटी साइज को स्मॉल कर दो। कैविटी साइज को स्मॉल करने से एक इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कि हम ओपन कैविटीज ले लें। ठीक है, सो ओपन कैविटीज ओपन कैविटीज ले लिया। ओके, सो एम एंड एन एंड क्यू आर दी डिफरेंट मोड्स, एंड एम एंड एन जो है वो क्या है, ट्रांसवर्स फील्ड पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं दीज मोड्स, एम एंड एन मोड्स। एंड क्यू मोड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके, क्यू जो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, और क्यू और जेड एक्सिस क्या है, कैविटी एक्सिस। अगर आप इसको ओपन कैविटी बना दो, इसको, इस वाले को, इस कैविटी को, इस क्लोज कैविटी को ओपन कैविटी बना दो, यानी कि ये पीछे की वॉल हटा दो, ये वॉल हटा दो, ये वॉल हटा दो, ये वॉल हटा दो, तो केवल ये दो वॉल्स रह जाती हैं। ओके, तो ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये जेड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो एक्सिस जो कैविटी की एक्सिस हो गई वो दैट इज दी जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस की जो अलॉन्ग मोड है दैट इज क्यू मोड, वो क्या है आपका, दैट विल रिप्रेजेंट दी लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न। एंड एम एंड एन विच आर दी perpendicular to the z-axis. So m and n mode are perpendicular to the this axis, this is y, both are the perpendicular to z-axis. So m and n modes are corresponding to x and y, and these are the transverse modes. Okay, so transverse modes जो है वो आपको कौन शो करेगा, m and n modes। ठीक है, तो डिफरेंट m and n वैल्यूज जो हैं वो हमें वेरियस ट्रांसवर्स मोड्स देगी, और डिफरेंट क्यू वैल्यूज जो है वो हमें वेरियस लॉन्गिट्यूडनल मोड्स देगी। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 9, ओमेगा जहाँ हमने निकाला था फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन दी कैविटी और इन फॉर क्लोज कैविटी, तो वहाँ से हम न्यू निकाल सकते हैं, न्यू। ठीक है, न्यू, so न्यू इज 2 ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, so न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा अपॉन 2 पाई, सो ओमेगा की वैल्यूज हमने ऊपर से पुट कर ली है, सी पाई अपॉन एन नॉट वैल्यू थी बाहर, यही था ना, सी पाई अपॉन एन नॉट इंटू दिस, ये इक्वेशन 9। ठीक है, यहाँ से हमने ओमेगा को डिवाइड कर देंगे हम 2 पाई से, तो हमें ये मिल जाएगा दिस। ठीक है, एंड फॉर बाइनोमियल एक्सपेंशन m and n, if m and n are less than q, then nu m and q is equal to c 2 n naught into, यहाँ से ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो c अपॉन 2 n नॉट तो अलग आ गया, और यहाँ से q अपॉन डी जो है वो कॉमन ले लो, क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बाहर लेंगे तो q अपॉन डी हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ रहा है, और ये हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, इसके अपॉन में आ जाएगा ये वाला टर्म, क्योंकि हमने ये कॉमन ले लिया तो इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया इसके अपॉन में, तो क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर अपॉन में ले लिया। अब हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर लेते हैं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, और ये 1/2 यहाँ आ जाएगा आगे, 1 प्लस एक्स की पावर एन का जैसे फॉर्मूला खोलते हैं 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, तो 1 प्लस एन यानी कि हाफ इंटू एक्स, दिस वैल्यू। ठीक, दिस वैल्यू, ये पूरी वैल्यू, तो ये खोल करके हमारे पास आ गया न्यू एम एन क्यू इज इक्वल टू सी अपॉन 2 एन नॉट क्यू बाई डी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, तो ये 4 इंटू 2 यहाँ से बाहर ले लिया 4, तो 4 इंटू 2 दैट इज 8, सो डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर ऊपर चला गया, क्यू स्क्वायर नीचे रहेगा, तो डी स्क्वायर अपॉन 8 क्यू स्क्वायर। ठीक, सो
C upon 2n naught Q upon D 1 plus this. So neglecting the terms containing m and n, अगर हम m और n वाले टर्म्स को जो है नेग्लेक्ट कर दें तो न्यू q जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, q इंटू सी अपॉन 2n नॉट d. ठीक है, न्यू q इज इक्वल टू c अपॉन 2n नॉट इंटू डी. तो q इंटू इसको लिख दिया हमने c अपॉन 2n नॉट इंटू डी. सो दिस इज द frequency of longitudinal mode of this is the frequency of mode. What mode? Longitudinal mode. Which mode? Longitudinal mode. So longitudinal mode के corresponding जो frequency है वो ये. ठीक है, ऐसे ही हम ट्रांसवर्स मोड के लिए निकाल सकते हैं. अगर हम क्या कर लें, तब हम इस टर्म को जो है इन टर्म को कॉमन ले लेंगे. बाइनोमियल एक्सपेंशन में इन टर्म्स को कॉमन ले लेंगे. ऐसे हम प्रत्येक ट्रांसवर्स के लिए निकाल सकते हैं. अगर हम इस वाले को कॉमन ले लेंगे फिर क्या रहेगा, अपॉन में इसके अपॉन में चला जाएगा. ठीक है, तो तब हम वहाँ से ऐसे ये कैलकुलेशन करके ट्रांसवर्स मोड के लिए भी निकाल सकते हैं. बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लॉन्गिट्यूडिनल मोड के लिए जो फ्रिक्वेंसी है, मोड ऑफ फ्रिक्वेंसी is nu q equals to q into c upon 2n naught into d. So this is similar to the frequency of oscillation of a stretched string of length d. ये वैसे ही है जैसे हम वहाँ पे waves and oscillation में पढ़ते हैं. तो stretched string के लिए जो है हम frequency of oscillation निकालते हैं तो यही होता है जिसकी कि लेंथ d हो. उसके लिए भी हम यही इसी तरीके से frequency mode निकालते हैं. ओके, तो ये आपके मोड्स ऑफ रेक्टेंगुलर कैविटी एंड द ओपन प्लानर रेजोनेटर ये था. ठीक, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम. ओके.